Have an eye contact with your patient, with your role player, and with your examiner as well. And be empathize. So आपने empathy को use करना है, sympathy को use नहीं करना. Use all these do's to pass your station easily. What you should not do. Do not forget to introduce yourself and the patient. Usually एग्जाम में क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से आप अपना तारुफ करवाना या फिर पेशेंट का तारुफ करना भूल जाते हैं. तो अगर आप स्टार्ट के जो मैंने आपको ये स्टेप्स बताए थे, अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे, दी स्टेप्स एंड दी स्टेप्स इन उर्दू, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी ये चीजें नहीं भूलेंगे. Do not make assumptions that patient will know that thing. Do not never ever make any assumption in your exam that patient will know that, examiner will know that. So why should I discuss these things? These are the petty things. No, never. Discuss each and every minor details limited to your time frames. Do not feel awkward while asking about any personal questions like अगर आप पूछते हो कि सिगरेट का या कोई और चीज तो नहीं इस्तेमाल करते, मैं माजरत का हूँ, पर ये पूछना जरूरी है कि क्या आप सिगरेट नोशी का इस्तेमाल तो नहीं करती, या फिर आप कोई और किसी किस्म का नशा. मैं फिर से कह दें, आप, मैं माजरत का हूँ लेकिन ये पूछना जरूरी है. नेवर इम्पोज एनी डिसीजन टू योर पेशेंट. ये नहीं कहना कि अगर सपोज वी बैक की काउंसलिंग आती है तो आप पेशेंट को कह दें कि हाँ जी आप वी बैक तो करवाए ही करवाए. नो, ऑलवेज शेयर द फैक्ट्स एंड फिगर्स. आप कहें कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये सक्सेस रेट है, ये फायदे हैं, ये नुकसानात हैं, ये ऑप्शंस हैं आपकी बीमारी से रिलेटेड. मैंने आपको ऑप्शंस दी हैं, आप अपने घर वालों से मशवरा करके तो ये ऑप्शंस आप मेरे पास दोबारा आ सकती हैं और मुझे बता दें कि आप क्या चाहती हैं. Do not interrupt the patient while he or she is speaking, but if the patient is getting too long, then you can ask the leading questions. अगर पेशेंट एक इनिशियली स्टार्ट में आप पेशेंट की सुने, ठीक है, पेशेंट की जो भी मसले मसाइल है वो ब्रेक द आइस करेंगे तो ही पेशेंट बोलना शुरू करेगा. लेकिन अगर आपको लगता है कि पेशेंट बोलता जा रहा है और आपका टाइम खत्म हो रहा है, तो इंटरप्ट द पेशेंट वेरी पोलाइटली कि माजरत हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये ऐसा था या ऐसा था. जस्ट स्टार्ट विद द लीडिंग क्वेश्चंस एंड देन start your counseling. Do not use medical terms and jargons. This will lead to your exam station failure. आपने मेडिकल टर्म्स और जार्गन्स यूज नहीं करने, बहुत आसान जुबान में चीजों को यूज करना है और पेशेंट को बताना है. इसमें आपको आपकी अच्छी वोकैबुलरी उर्दू की होनी चाहिए. जो यूट्रस है उसको बच्चेदानी कहते हैं, ओवरीज को अंडेदानी कहते हैं, ठीक है, कोई मैस है, फाइब्रस को रसोली कहते हैं, पेट में रसोली. तो आपको ये सब चीजें उर्दू में आनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग. So this, I hope I am clear with this station. Let's now talk about the how to break a bad news. Breaking bad news is a very important station. और अगर काउंसलिंग के स्टेशंस आपके दो आते हैं तो एक या तो ब्रेकिंग बैड न्यूज का या एक एंग्री पेशेंट का आता है स्टेशन, और एक सिंपल काउंसलिंग आती है. In the breaking bad news, the important thing is to make a setting. Always check that the setting you are setting in a very peaceful, polite, calm environment, and then break the bad news to the patient. If in any scenario or in any situation you see that there is a lot of hustle and bustle, a lot of noise, a clinic, so just come in your room, in your private room, or just do the acting of coming in your private room. Say to the patient, you can come to my room and we will discuss the news or we will discuss your reports. So make a setting, make a peaceful, calm, polite setting just by saying that. And then let the patient speak what they know about their disease. Call for the attendant, but do not waste time waiting for the attendant to come in the exam, obviously. And then use the props, like I have already previously said. Use the props if there is any tissue box, any cup of water present. Discuss the different options with the patient. Provide with the handouts. Tell about the support groups.
and give the contact number of the hospital or the clinic if necessary in case of emergency. So how will you break the bad news? Make a setting peaceful. पेशेंट को आराम से बिठाइए, उसे पूछिए आप ठीक हैं. टेक अ ब्रीफ हिस्ट्री. अच्छा, आप मुझे बताएंगे ये थोड़ा सा मसला आपको कब से शुरू हुआ. पेशेंट जब बोलना शुरू करेगा उसके बाद फिर आप कहेंगे अच्छा आप किसी को अपने साथ बुलाना चाहते हैं तो बुला लीजिए. और उसके बाद नेक्स्ट में आप बोलना शुरू कर दें. डू नॉट वेट कि कोई आएगा वाकई में अटेंडेंट. अगर पेशेंट जो है ब्रेकिंग बैड न्यूज पे, या पेशेंट या अटेंडेंट जो है उस टाइम पे डिप्रेस हो जाते हैं, दे स्टार्टेड क्राइंग और वीपिंग, तो अगर इफ देयर एनी प्रॉब्स यूज देम. अदरवाइज आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा आप पॉज कर लो और उसके बाद आप पेशेंट को बताओ कि डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू. आप परेशान मत हो, मसले का हल मौजूद है, ये डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस है. स्टिल द पेशेंट इज कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग. सो यहाँ पे आपकी असेसमेंट होगी कि हाउ टू डील विद दैट पेशेंट. तो वहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने थोड़ा सा पॉज लेना है. आपने पेशेंट से कहना है अगर आप ठीक फील कर रही हैं तो मैं आगे बताती हूँ हम क्या कर सकते हैं. अगर आप ठीक फील नहीं कर रही हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे पास दोबारा आ सकती हैं. मैं यहाँ पर आपके लिए बैठी हुई हूँ, जब भी आप आएंगी मुझे मौजूद पाएंगी. और ऑफ कोर्स इन द क्लिनिक टाइमिंग. और कभी भी आप आ सकती हैं दोबारा मशवरे के लिए. अगर अभी चाहती हैं तो अभी भी किया जा सकता है. So this will add your marks obviously in your rubric assessment of the breaking bad news in your exam. और फिर पेशेंट आगे से फिर खुद ही कह देगी या रोल प्लेयर नहीं ठीक है डॉक्टर साहब आप बता दें. तो यहाँ पे आपकी हर स्टेप पे ब्रेकिंग बैड न्यूज पे असेसमेंट होती है. हाउ टू डील विद द क्राइंग पेशेंट, हाउ टू डील विद द फ्रस्ट्रेटेड पेशेंट एंड अटेंडेंट, हाउ टू ब्रेक द बैड न्यूज, इन सब चीजों पे. तो हाउ टू ब्रेक द बैड न्यूज में क्या है, से द पेशेंट कि मैं माजरत खा हूँ लेकिन आपकी रिपोर्ट कुछ तसल्ली बख्श नहीं है. थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाइए, उसके बाद पेशेंट को बताइए. एंड देन ऑफ कोर्स इन द एंड सपोर्ट ग्रुप्स, कॉन्टैक्ट नंबर. अगेन गिव द सपोर्ट टू द पेशेंट. मैं आपके लिए मौजूद हूँ, मैं और मेरे माहिरीन डॉक्टर की टीम आपके लिए मौजूद है. आप जो भी इलाज चाहेंगी मैंने आपको ऑप्शंस दे दी हैं, आप किसी भी टाइम पे आ सकते हैं ताकि हम आपका इलाज कर सके आइंदा आइंदा के लिए. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू विल पास द योर स्टेशन ब्रेकिंग बैड न्यूज. नेक्स्ट comes the angry patient or angry attendant. The scenario may be and you are dealing with the unbooked emergency case patient previous to, and you inadvertently injure the bladder while opening the peritoneum in a rush, and afterwards you attend the attendant of that patient is furious upon you upon injury of the bladder and the prolonged catheterization of the patient. So how to deal with that patient? I will discuss a few examples with which will be the interactive session in the next video. And the most important thing is to acknowledge the patient. Yes, you are saying right. This is what my mentors have told me about how to deal with the angry patient and attendant. Use the word acknowledge. बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं माजरत खा हूँ कि ऐसा हुआ है. और उसके बाद आप कहें उसको कि से सॉरी, एक्सक्यूज, कि मैं माजरत करता हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ चीजें कुछ पेचीदगियां जो है वो किताब में मौजूद होती हैं. यहाँ पे कह के स्टिल आप थोड़ा सा पॉज लें. अटेंडेंट को आप बोलने दीजिए कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं. उसके बाद कहेंगे मैं यू कैन एक्सक्यूज देम कि मैं माजरत करता हूँ आपको इस तकलीफ से गुजरना पड़ा, आप परेशान हैं, मैं समझ सकती हूँ. अगर आप बात करना चाहती हैं या चाहते हैं तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अगर आप दोबारा आना चाहते हैं तो वो भी ठीक है. लिसन टू द पेशेंट एंड देयर कंसर्न एंड द एक्सपेक्टेशंस एंड देन इंटरोगेट. आप ऐसे कह सकते हैं हमारे अस्पताल में ऐसे वाकयात की तफसीलन छानबीन की जाती है. अगर आपका तजुर्बा हमारे अस्पताल के साथ अच्छा नहीं रहा तो ये हमारे लिए भी काबिल कबूल नहीं है. मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हम इसकी छानबीन करेंगे
और मैं यहाँ आपकी मदद के लिए मौजूद हूँ। आप ठीक कह रही हैं। एक बात फिर, आपके बाद प्रोवाइड द सोल्यूशन टू द पेशेंट। सोल्यूशन में क्या है कि ठीक है, इस मसले का ये हल है कि ये किया जा सकता है, पेशेंट से रिलेटेड, अटेंडेंट से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, कि आपके मसले के लिए अब जो हो गया है, हम बकायदा डॉक्टर की माहिरीन टीम से आपके मरीज को चेक करवाएंगे। अगर कोई मसला है तो हम बकायदा उसको देखेंगे, पेशेंट को अस्पताल में रखेंगे, बकायदा इलाज किया जाएगा, सीनियर डॉक्टर्स देखेंगे इनको, अटेंडेंट को कंसल्ट करेंगे, या कुछ बातें आपको बताई जाती हैं पहले से। और उसके बाद फिर अस्पताल की टीम यहाँ पे, अगर तो कोई नेग्लिजेंस का केस है तो अस्पताल की टीम छानबीन इनकी करेगी, प्रोवाइड विद द सोल्यूशन, एंड देन make the attendant on the patient on your side। ये ठीक है, ये आपकी बात ठीक है, मैं एक बार फिर माजरत खा हूँ। हम इसकी तहकीक करेंगे, हम फॉलो करेंगे और आपको भी बताते जाएंगे। So this is how you deal with the angry patient or attendant patient. Remember in your exam, if the patient got so much furious and they do not let you to speak, take a brief pause, say politely, you are right, वही एक्सक्यूज विद यू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम माजरत कहाँ हैं। अगर आप परेशान हैं, डोंट से कि आप गुस्से में हैं, नेवर एवर से टू द एनी एंग्री पेशेंट कि आप गुस्से में हैं, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती। जस्ट से पोलाइटली, आप अभी परेशान हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम अभी बात कर लेते हैं, वरना आप, मैं यही मौजूद हूँ, आप मेरे पास दोबारा भी आ सकते हैं। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है आपके मार्क्स ऐड ऑन कर देगी, यहीं पे आपके जो रूब्रिक असेसमेंट है वो हो जाएगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन विद द पेशेंट में आपके मार्क्स हो जाएंगे एंटर आपके असेसमेंट में। तो उसके बाद पेशेंट आपको खुद ही कह देगी चलें ठीक है, फिर अगर आप बता दें। तो एट द एंड तक आपने पेशेंट को पुरसुकून करना है, ठंडा करना है, और फिर आपने उसके बाद पेशेंट का से थैंक यू एंड से व्हाट एवर वी विल डू, व्हाट एवर वी विल डू इन द आवर हॉस्पिटल, या जो हो सकता है हम वो करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। So these are the few of the examples which I will discuss in the next part, and thank you and good luck.